السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ حماس کے عسکری دھڑے القسام بریگیڈ نے 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے 70 شہریوں کی رہائی کی مشروط پیشکش کی ہے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ 5 روزہ جنگ بندی کے دوران لڑائی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور اس دوران امداد اور انسانوں کی زندگی بچانے کا سامان غزہ کے ہر علاقے میں پہنچنے دیا جائے۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کو اس پیشکش سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس 5 روزہ جنگ بندی معاہدے میں تاخیر یا اس سے فرار کی قیمت اسرائیل کو چکانا پڑے گی۔ حماس کے زیر کنٹرول حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق پیر کو غزہ کی پٹی میں کل اموات 11,240 ہو گئیں۔ میڈیا آفس کے ترجمان کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک مرنے والوں میں 4,630 بچے اور 3,130 خواتین شامل ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ پر غزہ میں اسرائیل کے حملے رکوانے کی اپیل کی ہے، جبکہ یورپی یونین نے حماس کی جانب سے ہسپتالوں اور عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ ریاض سے واپسی کی پرواز کے دوران ایردوان نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہمیں مصر اور خلیج کے ملکوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ امریکہ اور مغرب کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سیز فائر کا حصول انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ایردوان جمعے کو جرمنی کا دورہ کریں گے اور منصوبہ بندی کے مطابق آنے والے ہفتوں میں مصر کا دورہ اور ایران کے صدر کی میزبانی کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ شہر کے الشفا ہسپتال کو محفوظ بنایا جانا چاہیے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہاں کم دخل اندازی کی جائے گی۔ صدر بائیڈن نے اوول آفس میں ایک تقریب میں صحافیوں کے سامنے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سٹی کے مرکزی ہسپتال کے دروازوں پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ شفا ہسپتال کے ایمرجنسی جنریٹرز میں ہفتے کو ایندھن ختم ہونے کے بعد سے 3 بچوں سمیت 32 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 36 بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کی موت کا خطرہ ہے، کیونکہ زندگی بچانے والے آلات کام نہیں کر سکتے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں مریض اور بے گھر افراد ہسپتال میں موجود ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس خود عام شہریوں کو ڈھال بناتی ہے اور یہ کہ غزہ کا سب سے بڑا ہسپتال اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا میڈیکل کمپاؤنڈ کے اندر اور اس کے نیچے ایک کمانڈ سینٹر ہے اور اس نے نقشے جاری کیے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کمپلیکس میں کہاں واقع ہیں، لیکن اسرائیل نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کم شواہد فراہم کیے ہیں۔ حماس اور شفا ہسپتال کا عملہ دونوں اسرائیلی الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ تنازعات کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے اندر بائیڈن انتظامیہ کے نقطہ نظر کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو تمام ملازمین کے لیے ایک خط جاری کیا جس میں تسلیم کیا گیا کہ اس بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف گہرا ذاتی صدمہ ہے۔ بلنکن نے اپنے خط میں کہا کہ اس بحران میں بچوں، بوڑھوں، خواتین اور دیگر شہریوں کی روزانہ کی تصویریں دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ پریشان کن ہے، جسے میں خود محسوس کرتا ہوں۔ بلنکن نے محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کو یقین دلایا کہ سینئر حکام ان کے خدشات کو سن رہے ہیں۔
उधर वाशिंगटन में हुक्काम तवक्को कर रहे हैं कि आज मंगल को नेशनल मॉल पर इसराइल की हिमायत में होने वाली रैली में हजारों अफराद शिरकत करेंगे और हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा करेंगे। ये रैली शिमाली अमेरिका की यहूदी फेडरेशंस और बड़ी अमरीकी यहूदी तंजीमों के सदूर की कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इसराइल और हमास जंग शुरू होने के बाद से फ्रांस में 1500 से ज्यादा यहूद मुखालिफ कार्रवाइयां और तबसरे रिकॉर्ड किए गए हैं। गजा की पट्टी में जंग की वजह से फ्रांस में कशीदगी बढ़ रही है। मुल्क भर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में ऐसे वाक़यात में 3 गुना इजाफा देखा गया है। वजारत के मुताबिक इन कार्रवाइयों के नतीजे में 571 गिरफ्तारियां हुई हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा है कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म और नए मुकर्रर करदा वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन कामयाबियों की मंजिलें तय करेंगे। लंदन में एक ज़ियाफ़त के दौरान खिताब करते हुए ऋषि सुनाक ने डेविड कैमरॉन के पेशरो वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली की कामयाबियों की भी तारीफ की, जिन्होंने पुलिस पर तनकीद के बाद सुनाक की जानिब से सुएला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटाने के बाद अब वज़ीर दाखिला का ओहदा संभाला है। सुनाक ने अपनी तकरीर में मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल के अपने मुतालबे को दोहराया। अमेरिका के सदर जो बाइडन और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग की इस हफ्ते सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के मौके पर दोतरफा बातचीत के लिए मुलाकात मुतवक्के है। बाली इंडोनेशिया में मुलाकात के बाद दोनों सरबराहान ममलुकत के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता होगा। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर से मालूम हुआ है कि रूस एक प्लांट की तामीर कर रहा है जो बड़े पैमाने पर ईरानी डिजाइन करदा कामिकाज़ ड्रोन तैयार करेगा, जिन्हें मॉस्को यूक्रेन की तवानाई की तनसीबात के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पेशरफ्त के बावजूद न तो अमरीका और न ही उसके इत्तेहादियों ने प्लांट के मालिक JSC अलबुगा या उससे वाबस्ता कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। व्हाइट हाउस, रूसी सिफारत खाने और ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने फौरी तौर पर तबसरे की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौज ने मुश्तरका हेलीकॉप्टर लाइव फायर ड्रिल का मंगल को इनेकाद किया, जिसमें दोनों अतराफ से अपाची हेलीकॉप्टरों ने पोचियोन इलाके में होने वाली इस मश्क में हिस्सा लिया। इन दोनों मुल्कों के अलावा दीगर ममालिक के दिफाई हुक्काम ने शिमाली कोरिया को उसके जौहरी अज़ाइम और धमकियों पर खबरदार किया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि शिमाली कोरिया की तरफ से अपने हरीफ के खिलाफ जंग जैसी किसी भी जारियत का इज्तिमाई जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल जॉन F. सॉप को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के सामने शहादत देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल समी सादात ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि वो अमरीकी कांग्रेस के सामने गो टू जीरो के असरात पर गवाही देंगे और अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल और बाइडन इंतजामिया की अफगान पॉलिसी का जायजा लेंगे। भारत के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने 3 कश्मीरी नौजवानों को फर्जी झड़प में हलाक करने वाले भारतीय फौजी अफसर की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी है और कहा है कि फौजी अदालत की तरफ से इस केस में गवाहों के बयानात कलमबंद करने और शहादत और सबूत इकट्ठा करने के सिलसिले में कोताही बरती गई और मुसल्लमा उसूलों और जवाबित से इन्हिराफ किया गया। फर्जी झड़प में मारे गए एक नौजवान मोहम्मद इम्तियाज के वालिद साबिर हुसैन ने ट्राइब्यूनल के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वो ट्राइब्यूनल के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी ट्राइब्यूनल के फैसले की नुक्ताचीनी की है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस ने अमेरिका की आर्चर एविएशन की शिराकत से आइंदा 3 बरस में
भारत में उड़ने वाली टैक्सी सर्विस शुरू करने का मंसूबा बनाया है। आर्चर के बनाए गए एयरक्राफ्ट मिडनाइट में 4 मुसाफिर और पायलट सवार हो सकते हैं, जो तकरीबन 160 किलोमीटर तक परवास कर सकता है। कंपनी की कोशिश है कि 200 एयरक्राफ्ट के साथ भारत के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सर्विस का आगाज किया जाए। सोमालिया के डोलू जिले में शदीद सैलाब ने मकीनों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। कुछ खानदानों को अपनी हिफाजत के लिए अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।